the current one, what we are saying, future with what is going to come, right? Any activity what you are doing, if you want to represent it in past or present or future, how to do that? So there are some things which is to be done. पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये मैं आपको जनरल डेफिनेशंस लिखाने का रीजन क्या है, आपकी कौन सा भी क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं. राइट डाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच. Some students are outside. Noun, parts of speech. Write down noun. Name, place, animal, thing. Subject is sorry. Noun, name, place, animal, and thing is called noun. Then pronoun. Instead of noun, ये बहुत यूज करते होते हैं. इनो, उनो, ये है pronoun अपना. Right? Instead of name, we are using we, their. उसको बोलते हैं he, she. Pronoun. Follow it now. Name, place, animal, thing is noun. Instead of using that name, place, animal, thing, we, you, if you use this terminology, pronoun. Then write down word, word of action, word, word of action. मतलब रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ये सब चीजों को क्या बोलेंगे? वर्ड. एडवर्ब, adverb, the thing which describes word, the thing which describes word is called adverb. यानी he was walking, तो ये जो was है adverb हो गया. आपको दिखा रहा सो आप क्या कर रहे हैं. वर्ब बोले तो आप एक सेंटेंस में बोलिए, वो क्या एक्शन है उसको और एडिशंस कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे adverb. नेक्स्ट preposition. I'll give it first. Write down. Preposition. Any term used before noun. Any term before used of noun. Noun से पहले जो भी इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? Preposition. Noun से पहले जो भी चीज इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे प्रीपोजिशन. जैसा इंडिया हो गया, द इंडिया, तो ये द क्या है? प्रीपोजिशन. राइट. नेक्स्ट कंजंक्शन. कंजंक्शन कोई दो अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन करने के जो इस्तेमाल किया जाता है उसको कंजंक्शन बोलते हैं. जैसा एंड हो गया, और हो गया, उसको बोलेंगे conjunction. Next, write down interjection. Interjection. अगर आप सरप्राइज हो रहे हैं कोई वर्ड से, एक्सक्लेमेशन मार्क डाल रहे, एक्सक्लेमेशन मतलब स्ट्रेट लाइन एंड ए डॉट, एक्सक्लेमेशन, वाव बोले, तो उस क्या बोलेंगे? सडन एक्सप्रेशन which is describing your emotions is called इंटरजेक्शन. और बोलते देखो, तो ये सब क्या है? इंटरजेक्शंस. आया समझ में? मैं ये क्यों लिखा हूं आपको? वोकैबुलरी के लिए. नाउ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्वालिटी ऑफ द नाउन. एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी ऑफ द नाउन. ही इज अ गुड पर्सन, तो पर्सन का नाउन हो गया, गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव. क्वालिटी दिखा रहे उसकी. So these are some parts of speech. Now write down present tense, past tense and future tense. पहले present tense.
present tense. The thing which is done in present or current is called present tense. The thing which is done in current or present is called present tense, or the thing which is done in future is called future tense. The thing which is done in future is called future tense. The thing which was done earlier is past tense. The thing which was done earlier is called past tense. The thing which was done earlier is called past tense. Next, write down direct speech, indirect speech. Direct speech and indirect speech. Direct speech and indirect speech. Direct speech, indirect speech. The words which are described directly is called direct speech. The words which are described directly is called direct speech. या फिर other words में the words which are spoken up in front. The words which are spoken up in front is called direct speech. सामने बोल देना उसको बोलते हैं direct speech. Indirect speech, the words spoken up in behind is called indirect speech. यानी वही बात को आप पीछे से बोल रहे हैं तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच. अब ये सब लिखाने की जरूरत क्या थी? ये आपको वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं. नाउ एफ यूज करना है. अगर क्लॉक का है तो ऑन यूज करना, प्लेस का है, डेट का है, डेज का है, एफ यूज करना. अगर क्लॉक का है आपको तो आप क्या यूज करेंगे? आप ऑन. और अगर प्लेस का है तो एट सो एंड सो प्लेस. राइट? उसके साथ साथ ए एंड द वोवेल्स नहीं होते, आर्टिकल्स. आर्टिकल्स ए एंड द. ए मतलब एक पर्सन, कोई एक बंदे को डिस्क्राइब करना है तो उसको बोला जाएगा ए. प्लूरल फॉर्म में डिस्क्राइब करना है, दो या उससे ज्यादा, एंड. और अगर कोई स्पेसिफिक कोई चीज को डिस्क्राइब करना है, थिंग, द. राइट? आपको ये क्वेश्चन कैसा आता है तो आई कैन नॉट गिव यू द क्वेश्चंस बिकॉज सम रैंडम क्वेश्चंस विल बी देयर. अंडरलाइन करा हुआ रहता है. वो अंडरलाइन वर्ड को अपने को क्या अटैच होता है वो डालना रहता. ग्रामर में अंडरलाइन करा हुआ रहता है. 10 क्वेश्चंस आते हैं, उसको क्या स्पेसिफिक वर्ड सूट होता वो आप लगाना. आई बात समझ में? अगर ईडी है तो पास्ट होता, आखिर में ईडी आया तो क्या रहता? पास्ट. आईएनजी आया तो कमिंग, फ्यूचर. राइट? और कम होकर आया तो करंट पोजीशन में रहता, प्रेजेंट. तो ये ईडी अगर है तो पास्ट है, कोई भी वर्ड में आईएनजी लग गया तो समझ जाओ कमिंग, फ्यूचर. और अगर करंट है तो जो वर्ड है उसी अंदाज में रहता वो करंट पोजीशन में. तो पास्ट इज ईडी, present is the position what you have, and ing in the future form. I hope it's clear. ये 10 क्वेश्चंस अंडरलाइन वर्ड में आते और हमेशा नए क्वेश्चंस आते, प्रीवियस पेपर्स में से नहीं आते. और कुछ स्टूडेंट्स को तो सुनने में आया आंसर्स याद करें, यानी 93 का ए, 94 का बी. यू आर वेस्टिंग द टाइम. नथिंग इज गोइंग टू कम लाइक दैट. आई बात समझ में? Nothing is going to get repeated or nothing is going to come from that part. So don't mug up those answers. You are wasting the time. Right? Next part. This is for 10 marks.
Now 15 marks is your functional grammar. Functional grammar. सबसे पहले लिख लीजिए सिनोनिम्स, फंक्शनल ग्रामर में आने वाले सिनोनिम्स, द वर्ड विच हैज सिमिलर मीनिंग। इंस्टेड ऑफ ये वर्ड को दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ना अपन, सेम मीनिंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं अपन? सिनोनिम्स। ऑपोजिट्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑपोजिट यानी हाई बोले तो लो, अप बोले तो डाउन, इसको एंटोनिम्स बोलते हैं। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वर्ड्स, ये फंक्शनल ग्रामर में आएगा। एनी वर्ड कैन कम, एनी वर्ड कैन कम नाउ। देन नेक्स्ट पार्ट, synonyms and antonyms, 5 questions, 5 marks, only 5 questions, 5 marks. next part, तो आपके इंग्लिश के पार्ट में कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी 10 मार्क्स का है, वोकैबुलरी है, दिस सिनोनिम्स आपका जो फंक्शनल ग्रामर है, एंड पैसेजेस विल गिव यू मोर मार्क्स, passages will give you more marks, 15. then आपका जो starting parts of speech है उसमें से भी आप कर ले सकते, बट ओवर कॉन्फिडेंटली सॉल्व मत करिए, थिंक ट्वाइस देन सॉल्व। एक बार 2 बार कर लेना, अपनी लैंग्वेज में समझे तो बोलिए। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ लेके देखिए, उसके 5 मार्क्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। I cannot give you the questions because some random questions will be picked from Google. So just be prepared. So you got the idea of communication, and communication of will कितने आना है? 40 marks. Out of 50 how many? 40. I hope it's clear. I'll go for statistics part now.